جی آپ نے جو کچھ کہا ہے میں نے ایک ایک لفظ غور سے سنا ہے، آپ کہیں تو دوہرا دوں؟ شاہ جی بولے اس کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا۔ اب اصل بات سنو، ہمارے ملک یعنی پاکستان کو روس کے ساتھ بھارت کے فوجی معاہدے میں جو امدادی سامان درج ہے اس کے اعداد و شمار کی ایک کاپی کی ضرورت ہے، تاکہ دشمن کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے اور اپنے دفاع کو دشمن کے حملے کے خلاف ناقابل شکست بنایا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن نے روس سے کون کون سے مہلک ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے حاصل کیے ہیں، اور وہ کون سا ایئرپورٹ ہے جہاں پاکستان سے جنگ کی صورت میں روس سے بمبار اور لڑاکا طیارے آ کر اتریں گے۔ یہ کام تمہارے اور کمانڈو جبران یعنی تم دونوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، لیکن تمہیں یہ ڈیوٹی سونپنے سے پہلے تم سے پوچھنا ضروری ہے کہ کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ عمران نے کہا، کیوں نہیں کر سکوں گا سر، میں اپنی جان دے کر بھی یہ کام کروں گا، یہ میرے ملک کی سالمیت اور اسلام کی ناموس کا سوال ہے۔ 2 اور 2 4 کے اصول پر عمل کرنے والے حقیقت پسند شاہ جی نے کہا، ہمیں تمہاری جان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھارت اور روس کے جنگی معاہدے کی نقل کی ضرورت ہے، اور یہ کام تمہیں اور جبران کو زندہ رہ کر کرنا ہوگا۔ جبران بولا، سر اس سلسلے میں ہمیں چند ایک ابتدائی معلومات کی ضرورت ہوگی۔ شاہ جی نے پوچھا، مثلاً کس قسم کی معلومات؟ کمانڈو جبران نے عمران کے دل کی بات پوچھی تھی۔ عمران نے کہا، مثلاً یہ کہ اگر بھارت اور روس کے درمیان جنگی معاہدہ دلی کی بجائے بمبئی میں ہو رہا ہو تو کیا اس کے دستاویزات صوبہ مہاراشٹرا کی حکومت کی تحویل میں رہیں گے یا مرکزی حکومت کے پاس؟ شاہ جی نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا جواب تم مجھ سے بہتر دے سکتے ہو۔ وہ بولے، اس سلسلے میں ہمارا خاص آدمی گل خان جو رام پرساد کے نام سے اسی دلی شہر میں ہوٹل چلا رہا ہے اور جس نے بھارتی فوجی ساز و سامان کے اعداد و شمار تمہیں مہیا کر دیے ہیں، وہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کو معاملے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے۔ تم دونوں رام پرساد یعنی گل خان سے ملو گے۔ شاہ جی نے پوچھا، کوئی اور بات پوچھنی ہو تو وہ بھی بتا دو۔ عمران بولا، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ شاہ جی نے کہا، ٹھیک ہے، باقی سب کچھ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ بڑا حساس، نازک اور خطرناک ترین مشن ہے، ہر قدم پر تمہارے پکڑے جانے کا امکان ہوگا۔ اگر پکڑے گئے تو کیا کرو گے؟ عمران نے فوراً جواب دیا، اگر پکڑے گئے تو اپنے فرضی نام کے سوا اور کچھ نہیں بتائیں گے۔ شاہ جی نے بھی فوراً کہا، چاہے تمہارے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے۔ عمران نے تائید کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، چاہے ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے، ہم اپنا فرضی نام بتانے کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ شاہ جی نے کہا، ہمیں تم دونوں سے یہی توقع ہے، ہم تمہیں زہریلی ٹیوب بھی دے سکتے ہیں جسے تم عقل داڑ کے اندر چھپا کر رکھو گے اور مشکل کے وقت اسے دانتوں سے توڑ کر خودکشی کر سکتے ہو، لیکن خودکشی ہمارے دین میں حرام ہے، تم کسی حالت میں بھی خودکشی نہیں کرو گے۔ عمران بولا، ہم خودکشی ہرگز نہیں کریں گے۔ شاہ جی عرف چندرکانت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاباش، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ تم گل خان یعنی رام پرساد سے کہہ کر حاصل کر سکتے ہو۔ رام پرساد بڑے کام کا اور بڑے اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس سلسلے میں تم دونوں کی ٹھیک ٹھاک رہنمائی کر دے گا۔ کوئی اور بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، کیونکہ مجھے آج ہی رات واپس بھی جانا ہے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ شاہ جی نے اٹھتے ہوئے کہا، اوکے۔ شاہ جی کے اٹھتے ہی حاجی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں شاہ جی کو چھوڑ کر ابھی واپس آتا ہوں۔ حاجی صاحب شاہ جی یعنی چندرکانت کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس وقت رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کمانڈو عمران اور جبران حاجی صاحب کے خالی پلاٹ والے چھوٹے سے عارضی کمرے میں اکیلے رہ گئے اور اپنے نئے مشن کے بارے میں کچھ سوچنے اور باتیں کرنے لگے۔ کمانڈو جبران نے عمران سے پوچھا، میرا مشورہ یہ ہے کہ جس روز بمبئی کے تاج محل ہوٹل میں بھارت اور روس کے وفد کے درمیان فوجی معاہدے پر دستخط ہوں گے، ہم میں سے کسی ایک کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ عمران نے کہا، یہ تم نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گل خان یعنی رام پرساد جی سے فوجی معاہدے کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہمیں اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فوجی معاہدے کے روز تاج محل ہوٹل میں کس حیثیت سے داخل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس روز وہاں سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوگا اور انٹیلیجنس والے جگہ جگہ بیٹھے آنے جانے والوں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ کمانڈو جبران نے کہا، میرا خیال ہے ہمارا معاہدے سے پہلے ایک دفعہ تاج محل ہوٹل میں جا کر وہاں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ عمران کو جبران کی یہ تجویز اچھی لگی، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس بارے میں کل گل خان یعنی رام پرساد سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا مشورہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ طے پا گیا تو دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو رہے تھے لیکن گہری نیند نہیں سوئے تھے۔ کمانڈو کبھی گہری نیند نہیں سوتا۔ شاہ جی یعنی چندرکانت اسی رات بہاو نگر واپس روانہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اپنے دلی والے حاجی صاحب نے کسی خفیہ ذرائع سے گل خان جانی رام پرساد کو عمران اور کمانڈو جبران کے نئے مشن کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔
ये सब कुछ रातों रात ही हो गया था। चुनाचे सुबह जब कमांडो इमरान चांदनी चौक वाले अपने खास जासूस गुल खान उर्फ राम प्रसाद जी के होटल में अमृतसर वाले जुगल प्रसाद के भतीजे मोहनदास के रूप में पहुंचा तो उसके माथे पर हिंदुआना तिलक लगा हुआ था और लिबास खद्दर का कुर्ता और तंग मोरी वाले पाजामे और वॉस्कट पर मुश्तमिल था। गुल खान उर्फ राम प्रसाद को इमरान के नए मिशन के बारे में तमाम तफसीलात का रात को ही इल्म हो चुका था। उसने होटल में ये मशहूर कर दिया था कि इमरान यानी मोहनदास अमृतसर अपने चचा लाला जुगल प्रसाद को मिलने गया हुआ है। चुनाचे इमरान को देखते ही गुल खान उर्फ राम प्रसाद जी बोले, मोहनदास अमृतसर से कब आए? कमांडो इमरान ने बड़ी इंकिसारी के साथ कहा, महाराज अभी सीधा स्टेशन से ही आ रहा हूँ। गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने कहा, अच्छा, कल शाम की गाड़ी में अमृतसर से बैठे होगे? इमरान ने बड़े अदब से कहा, जी हाँ लाला जी। वो बोले, हमारे दोस्त और तुम्हारे चचा लाला जुगल प्रसाद जी का क्या हाल है? इमरान ने कहा, बिल्कुल ठीक है जी, आपको प्रणाम कह रहे थे। वो बोले, चलो अच्छा हुआ तुम अपने रिश्तेदारों से मिल आए, जाओ अपने कमरा नंबर 15 में जाकर कुछ देर आराम करो। ये सारी बातें राम प्रसाद जी ने दिल्ली के CID वाले तिलक चंद मेहरा साहब को सुनाने के लिए कही थी, जो उस वक्त राम प्रसाद जी के पास ही बैठा सिगरेट पकड़े हुए इमरान को बड़े गौर से देख रहा था। इमरान ऊपर अपने कमरे में आ गया, जहाँ एक ट्रंक में उसके हिंदुआना कपड़े वगैरह उसी तरह पड़े थे। राम प्रसाद जी ने ऊपर उसके लिए चाय भिजवा दी। इमरान बोसीदा सी चारपाई पर बैठकर चाय पीने लगा और सोचने लगा कि राम प्रसाद यानी गुल खान से किस वक्त अपने मिशन के बारे में बात हो सकेगी। ये तय करना राम प्रसाद का काम था। चाय पीकर इमरान नीचे आकर काउंटर पर बैठ गया और बिल वगैरह बनाने के काम में मसरूफ हो गया। उस वक्त CID वाले मेहरा साहब जा चुके थे और राम प्रसाद एक सरदार जी के पास आराम कुर्सी पर बैठे भारत के इंतखाबात के बारे में बात कर रहे थे और बड़े पुरजोश अंदाज में वाजपेयी की हिमायत करते हुए कह रहे थे, सरदार जी मेरी बात आज नोट कर लो, इस दफा भारत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। राम प्रसाद जी ने कनखियों से कमांडो इमरान को देख लिया था कि वो ऊपर से आकर काउंटर पर बैठकर काम करने लगा है। वो भी यही चाहते थे। ये तो आप अपने खास जासूस गुल खान उर्फ राम प्रसाद जी के बारे में जान चुके हैं कि वो एक लंबी मुद्दत से राजधानी दिल्ली में राम प्रसाद के नाम से जासूसी कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को जबरदस्त देशभक्त यानी भारत देश से मोहब्बत करने वाला मशहूर कर रखा था। उसकी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के लीडर एडवाणी और वाजपेयी से बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में ही होती रहती थी। यहीं राम प्रसाद ने महकमा डिफेंस के सीक्रेट सर्विस के ओहदेदार गुप्ता जी से ताल्लुकात बढ़ाए थे। गुप्ता जी कम गो आदमी थे, मगर शराब उनकी जबरदस्त कमजोरी थी और शराब में वो ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की के दीवाने थे। चुनाचे अपने जासूस राम प्रसाद ने गुप्ता जी को ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की 3 बोतलें तोहफे के तौर पर देकर उससे भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जंगी कुव्वत और जंगी साजो सामान की 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फहरिस्त हासिल कर ली थी और ये फहरिस्त दिल्ली के हाजी साहब और बहावनगर के अपने तजुर्बाकार जासूस शाहजी की वसातत से पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। अब इमरान और कमांडो जिब्रान के सामने इससे भी ज्यादा अहम और पेचीदा मिशन था। उन्हें ताजमहल होटल बम्बई में रूस और भारत के दरमियान तय पाने वाले जंगी माहिदे की एक नकल किसी तरह से हासिल करके पाकिस्तान भिजवानी थी। ये पहले मिशन से भी ज्यादा नाजुक, दुश्वार और पेचीदा और अहम मिशन था। उस फौजी माहिदे की एक नकल की हमारे पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी ताकि हमें मालूम हो सके कि दुश्मन हमारे खिलाफ जो महाजाराई कर रहा है उसकी नौयत क्या है और रूस उसे कितना फौजी सामान और लड़ाका तैयारे, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले टैंक शिकन मिसाइल और टैंक वगैरह दे रहा है। और अगर रूस भारत को आबदोज भी दे रहा है तो कितनी आबदोजें दे रहा है ताकि उनके मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार किया जा सके। सारा दिन अपने जासूस राम प्रसाद जी ने इमरान से मतलब की कोई बात न की, बस काम से मुताल्लिक कोई बात आते जाते कर लेते। दोपहर का खाना भी इमरान ने काउंटर पर बैठे बैठे ही खाया। दोपहर के बाद राम प्रसाद ये कहकर बाहर चले गए कि एक पार्टी कोई फंक्शन कर रही है जहां हमें चाय पेस्ट्री सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। दोपहर के गए वो शाम को वापस आए। आते ही इमरान से कहा, मोहनदास बहुत काम कर चुके हो, ऊपर जाकर कुछ देर आराम करो। इमरान अपने कमरे में आ गया। उसका ख्याल था कि शायद राम प्रसाद जी उससे अपने मिशन के बारे में कोई बात करने आएंगे, मगर वो ना आए। इमरान अपने कमरे में ही लेटा दिल्ली के अंग्रेजी और 1-2 उर्दू के अखबार पढ़ता रहा। रात को उसने खाना भी अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया। उसके बाद वो नीचे होटल में आ गया। राम प्रसाद जी काउंटर पर रोजाना की बिक्री का हिसाब किताब कर रहे थे। इमरान उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा चाय पीने लगा। राम प्रसाद जी ने काम से फारिग होने के बाद इमरान से कहा, मोहनदास ये जरा हिसाब तो चेक करना, और उन्होंने एक रजिस्टर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान रजिस्टर पर लिखी हुई रकम को जोड़ने लगा तो राम प्रसाद बोले, भाई ऊपर कमरे में जाकर आराम से चेक करो, मैं ऊपर आकर रजिस्टर ले जाऊंगा।
इमरान समझ गया कि राम प्रसाद कमरे में आकर उससे जरूरी बात करना चाहते हैं। हिसाब किताब चेक करने का महज एक बहाना है। वो रजिस्टर लेकर अपने कमरे में आकर बैठ गया और हिसाब किताब चेक करने के बजाय राम प्रसाद जी का इंतजार करने लगा। कोई 1 घंटे के बाद राम प्रसाद जी ऊपर आए और आते ही पूछा, क्यों भाई मोहनदास, हिसाब किताब चेक कर लिया? इमरान ने कहा, मैंने 2-3 बार रकमें चेक की हैं, सब हिसाब ठीक है। उस वक्त रात के 9 बजे का वक्त था। राम प्रसाद जी ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब उनकी तसल्ली हो गई कि बाहर कोई आदमी नहीं है तो दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और चिटखनी न लगाई। फिर इमरान के सामने रजिस्टर लेकर इस तरह बैठ गए जैसे रजिस्टर में लिखी हुई रकमें चेक कर रहे हैं। उनकी निगाहें रजिस्टर पर थीं। धीमी आवाज में कहने लगे, हाजी साहब ने मुझे खुफिया जरिए से सब कुछ बता दिया है। यूं समझो कि मुझे फुल रिपोर्ट मिल गई है। राम प्रसाद जी रजिस्टर के वर्क उलटने लगे। इमरान ने पूछा, तो फिर क्या ख्याल है आपका? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ रख दिया। खामोशी से उठकर दरवाजे के पास गए। दरवाजा एकदम खोल कर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद किया और इमरान से कहने लगे, मामला काफी मुश्किल लगता है, लेकिन जितना ये मुश्किल है उतना ही अहम भी है। भारत और रूस के दरमियान जंगी माहिदे की उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई इस माहिदे की बात कर रहा था, जिस पर एडवाणी जी ने कहा था कि उसकी शुरुआत हमने की थी। हमने जनता से अपनी पार्टी एजेंडे में वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद को ढाकर वहां राम मंदिर बनाएंगे और उसके बाद रूस की फौजी मदद से पाकिस्तान पर हमला करके उसे फिर से भारतवर्ष में शामिल कर देंगे। कांग्रेस की हुकूमत हमारी पॉलिसी की भौंडी नकल कर रही है। इमरान ने कहा, ये तो एडवाणी ने हर हिंदू के दिल की बात कही है। कोई भी हिंदू पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकता। वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, भारतीयों का ये नापाक ख्वाब हमेशा के लिए खाक में मिल गया है। राम प्रसाद जी बोले, इसके बावजूद भारत की हुकूमत अंदर ही अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। रूस के साथ होने वाला फौजी माहिदा इस बात का सबूत है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान को खत्म करने का ख्याल अभी तक दिल से नहीं निकाला। अल्लाह ही जाने भारत इस माहिदे के जरिए रूस से किस किस्म की फौजी इमदाद ले रहा है। अगर इस इमदाद में हाइड्रोजन बम का फार्मूला भी हुआ तो वो बड़ी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाकर पाकिस्तान को फिर से दबाने की कोशिश कर सकता है। इमरान ने कहा, मेरा तो ख्याल है गुल खान जी, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत से बहुत आगे है। ये मेरा नहीं बल्कि मगरबी तबसरा निगारों का भी ख्याल है। राम प्रसाद जी बोले, भाई कुछ भी हो, तुम इनका एतबार नहीं कर सकते। भारतीयों को इस बात की घुट्टी दी जाती है कि पाकिस्तान उसके जिस्म को काट कर बनाया गया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रूस भारत माहिदे के मुज़मिरात की फुल रिपोर्ट हासिल करके पाकिस्तान को भेजनी बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इमरान बोला, फिर आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है ताजमहल होटल में माहिदे के लिए रूसी वफ्द के आने से 1 हफ्ता पहले ही सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी और सफेद कपड़ों में और खुदा जाने किस किस भेस में इंटेलिजेंस वाले जगह जगह तैनात कर दिए जाएंगे। उस वक्त हमारे लिए ताजमहल होटल में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिस पर अभी से होटल में दाखिल होकर अमल करना शुरू कर दिया जाए। राम प्रसाद ने कहा, मैं खुद इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे 1 दिन यानी कल के दिन की मोहलत दे दो। परसों इसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। इस दौरान मैं बम्बई में अपने एक बड़े अहम आदमी से बात करता हूँ। उससे मशवरा करना बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा, क्या ये आदमी बम्बई में इतना असर रसूख रखता है कि इस सिलसिले में हमारी मदद कर सके? राम प्रसाद ने इमरान का कंधा दबाया और उठते हुए कहा, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका शहर में असर रसूख न हो, वरना उसकी मौजूदगी का फायदा ही क्या है। बाकी बातें कल होंगी। राम प्रसाद जी चले गए। दूसरा सारा दिन कमांडो इमरान ने बड़ी बेचैनी से गुजारा, क्योंकि उसके सामने इंतहाई अहम और पेचीदा मिशन था। उसकी कामयाबी की कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आ रही थी। दूसरे दिन रात को वो अपने कमरे में आकर राम प्रसाद जी का बेताबी से इंतजार करने लगा। कोई 12 बजे के करीब राम प्रसाद जी उसके कमरे में आ गए। खामोशी से दरवाजा बंद करके इमरान के सामने कुर्सी पर बैठे कहने लगे, बात यह है कि मैं कल भी इसी सिलसिले में एक जगह गया था, मगर जिस आदमी से मिलना जरूरी था उससे राब्ता नहीं हो सका। आज उससे राब्ता हो गया है और उससे सारी बात हो गई है। ये मत समझना कि मैंने साफ उर्दू या अंग्रेजी जबान में या हिंदी जबान में उससे गुफ्तगू की है। नहीं, हमारी बात करने की एक खुफिया यानी कोड जबान होती है। हम उस जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। ये बातें आम टेलीफोन पर भी नहीं होती। हमारा एक दूसरे से इसी शहर में और दूसरे शहरों में बात करने का अपना एक खुफिया जरिया है जो हमने अभी तक तुम्हें भी नहीं बताया, क्योंकि अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। राम प्रसाद जी ने कंबल के अंदर हाथ डालकर वॉस्कट में से एक पासपोर्ट साइज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालकर इमरान के सामने रख दी और बोले, इस आदमी की शक्ल अपने जहन में बिठा लो और ये तस्वीर भी अपने पास रखो। इमरान ने फोटो देखी। ये एक दरमियानी उम्र के आदमी की फोटो थी जिसने कांग्रेसी खद्दर की टोपी पहनी हुई थी।
गले में खद्दर का कुर्ता था। टोपी के किनारे से कुछ कुछ सफेद बाल झलक रहे थे। नक्श आम किस्म के थे, मगर आंखों में एक खास चमक और जहानत नजर आ रही थी। राम प्रसाद जी कहने लगे, ये अपने सत्तार सेठ की फोटो है। कांग्रेस के मुतंगा हलके की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त वर्कर है। कांग्रेस की मुख्तलिफ शाखों में हर साल हजारों रुपए का चंदा देता है। बम्बई में इसका पार्टी डेकोरेशन का बहुत बड़ा कारोबार है। बम्बई में कांग्रेस पार्टी के जितने जलसे होते हैं उनका सारा इंतजाम ये सेठ ही करता है और कांग्रेस से एक पैसे का बिल भी नहीं लेता। सारे अखराजात खुद उठाता है। इस वजह से ये कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी और उसके लीडरों में बेहद जाना पहचाना जाता है। इसका बम्बई के इलाके मुतंगा में कॉलेज रोड पर बहुत बड़ा ऑफिस है। एक दो बार सोनिया गांधी भी इसके दफ्तर में आ चुकी हैं। सत्तार सेठ बम्बई की सोसाइटी खास तौर पर फिल्मी हलकों में अपने खुले खर्च और पार्टियों की वजह से बड़ा मकबूल है। बड़े बड़े होटलों में गैर मुल्कियों की पार्टियों के भी ठेके उसे ही मिलते हैं, क्योंकि उसका पार्टी डेकोरेशन का इंतजाम सबसे आला और जदीद लाइटों पर होता है। ये सारा ड्रामा सत्तार सेठ ने इसलिए रचाया हुआ है कि वो हिंदू हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम और इरादों का सुराग लगा सके और फिर ये रिपोर्ट पाकिस्तान से मुताल्लिक इदारों तक पहुंचा सके। राम प्रसाद जी ने ताकीद करते हुए इमरान से कहा, इस तस्वीर को संभाल कर रखना और सत्तार सेठ से मिलने के बाद इसे फाड़ कर फेंक देना। इमरान ने एक बार फिर तस्दीक की खातिर पूछा कि क्या सत्तार सेठ को उनके मिशन के बारे में आगाह कर दिया गया है। उसके जवाब में राम प्रसाद बोला, तुम एक सवाल बार बार पूछकर अपना और दूसरे का वक्त क्यों जाया करते हो? मैंने तुम्हें बता दिया है कि सत्तार सेठ को तुम्हारे मिशन के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। अब तुम और जिब्रान दोनों बम्बई जाकर सत्तार सेठ से दिल्ली की कांग्रेसी शाख के वर्कर्स की हैसियत से मिलोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें सत्तार सेठ बता देंगे। यहाँ मैं यही बताऊंगा कि मोहनदास की मासी की हालत खराब हो गई है। उसे अचानक अमृतसर जाना पड़ गया है। जब तुम वापस आओगे तो यही कहोगे कि तुम्हारी मासी सकते की हालत में है और कोई पता नहीं कब स्वर्गवास हो जाए। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ से सीधे हाजी साहब के होटल में पहुंचोगे, जो तुम्हारे और जिब्रान के बम्बई जाने का इंतजार करेंगे। बात खत्म करने के बाद राम प्रसाद जी उठकर चले गए। इमरान कुछ देर तक चारपाई पर बैठा बम्बई वाले सत्तार सेठ की पासपोर्ट साइज की फोटो को गौर से देखता रहा। फिर उसे अपने कुर्ते के अंदर वाली जेब में रख कर सो गया। उसने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। ठीक 4 बजे क्लॉक के अलार्म ने उसे जगा दिया। उसने जल्दी जल्दी गर्म पानी से मुंह हाथ धोया, कमरे से निकला और बाजार में आकर पैदल ही हाजी साहब के होटल की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।